Once again, good morning, everyone, and welcome back to Data Structures Theory Session. Now, as we have arranged this extra session on Saturday, this is only online session, and thank you for joining. As we discussed, let us go through the sorting algorithms here. Now, as you already know that the sorting algorithm and searching algorithms you have already completed in lab session, but on your request, let's go through it one more time. So I'm going to present this presentation slides. This file has already been uploaded in the e-content, so you all can download, and it is in PPTX format so that you can go through all the animations. Okay, so what I'll do is we'll go through, let's say, one bubble shot. Now, based on this explanation, you can go through the slides and you can understand selection as well as insertion. So I'll go through bubble and then we directly jump to the merge sort. Okay, and we will see how merge sort will work, and we derive the pseudocode for merge sort also. So what is bubble sort? Well, bubble sort is nothing where actually we complete two consecutive elements, and if those two elements are not in the required sequence, then we swap those two numbers and then we move forward. Now that's how bubble sort works. So if we say that if we are going to sort this array in ascending order, then initially it is not sorted, unsorted array. And what we do is we start with comparing two consecutive numbers. So if we start with the first number, and if we take temporary indexing variable j, then the next number will be on j plus 1. So we compare jth value with j plus 1th value, and if those two values are not in ascending order, then we are going to swap those two values. 2 and 6 we are going to swap, and then we move forward, j plus plus. So 6 and 1 we swap it and j plus 1. 6 and 5 we swap it and j plus plus. 6 and 3 swap and j plus plus. 6 and 4 swap, and when you do j plus plus, j plus 1 will be out of range. Now that means j की लूप आप कब तक चलाओगे? जितने numbers हैं आपके पास -1 time. Okay, so here we complete our loop of j, and एक value ने उसकी जगह ले ली. 6 has reached up to its place. Now 6 was the largest value, and it has taken its place inside your array at the end. तो वो अगर उसकी जगह पे पहुंच गया, then भूल जाओ, अब उसको रहने दो उसको वहीं पे. Now this entire process is called one pass. आपने एक पास खत्म किया, and when you are done with one pass, one value reach on its place. So एक वैल्यू को उसकी जगह पे पहुंचाने के लिए आपको एक पास चाहिए, राइट? तो अगर आपके पास 6 वैल्यू है तो आप 5 वैल्यू को उसकी जगह पे लेके जाओगे. यू नीड 5 पासेस, और लास्ट जो बचेगी वो डेफिनेटली उसी की जगह पे रहेगी. सो इफ यू हैव n वैल्यूज, यू विल रिक्वायर n-1 पासेस. और पास, हर एक पास के अंदर हम क्या करते हैं? We do the repetitive process. We start with j, we compare j in j plus 1th value, and if it is not as per our requirement, we swap those two values and do j plus plus. So that's how bubble sort works. So 2 and 5, it is just as we require it, so no swapping operation, j plus plus. 5 and 3 we swap it, j plus plus. 5 and 4 we swap it, and now here हम क्या करेंगे? हम अब 5 और 6 को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज 6 इज ऑलरेडी, उसने अपनी जगह तो ले ली है. सो इन अ सेकेंड पास आपके नंबर ऑफ कंपेरिजन्स जो है वो कम हो जाएंगे. सो योर जे, लूप ऑफ जे विल गो अप टू व्हाट? अप टू थर्ड लास्ट. पहली बार सेकेंड लास्ट तक गए, दूसरी बार थर्ड लास्ट तक. यू कंप्लीट योर प्रोसेस हियर. ओके,
So that's how bubble sort works. So what if, let's say, we want to write an algorithm for bubble sort, or the pseudocode, let's say, for bubble sort. So a procedure for bubble sort we are going to write. Now what we are doing, we always start our j from the first value and we compare two consecutive values j and j plus 1. So हम क्या करते हैं, t of j and t of j plus 1 को हम compare करते हैं. What is t? T is your entire array, original array. So we compare, if t of j is greater than t of j plus 1, then we swap those two values, t of j and t of j plus 1 को हम swap करेंगे. And then what we do j plus plus, right? So j का loop चलेगा. So we will continue for j equals to 1 up to something. Now forget about this something right now, we'll discuss it later. So we run a loop of j equals to 1, j less than something, j plus plus. So आपने j का loop चला दिया. Now when you are done with this entire process, this is called one pass. And अगर आपका एक पास खत्म होता है तो एक वैल्यू उसकी जगह लेती है. तो ये for loop जो आपने लिखा j का, that completes once and one value will take its place. Now next what you do, you repeat this entire process. एक पास खत्म हुआ, इसी को आप रिपीट करोगे दूसरे पास से, फिर से j आएगा कहाँ पे, स्टार्टिंग पे. So we need number of passes and for that we need outer loop also. So outer loop is I equals to 1 up to something. तो ये outer loop जो है वो आपको number of passes देगा और inner loop जो है वो आपको number of comparisons देगा. And that's how bubble sort works. Now let us define कि भाई ये दोनों loop कहाँ तक चलनी चाहिए. So as we discussed, अगर 6 वैल्यू है तो 5 पास करने पड़ेंगे आपको. So if you do have n values, then you need to complete n minus 1 passes. Correct? So outer loop will run up to n minus 1. So that defines the range of outer loop. Now let us discuss inner loop. Inner loop will always start from 1, लेकिन वो जाएगा कहाँ तक, पहली बार सेकंड लास्ट तक, दूसरी बार थर्ड लास्ट तक, तीसरी बार फोर्थ लास्ट तक. मतलब जैसे ही आपके पासेस बढ़ते हैं आपके कंपैरिजंस कम होते हैं. So as you increase your I, your loop of j should decrease. So that's why हम inner loop जो है वो उसको कहाँ तक चलाएंगे, up to n minus I. जैसे ही I बढ़ेगा n minus I decrease होगा. Okay, so that's how it works. So you start with comparison j plus 1, comparison over, and here we stop. 5 वैल्यू उसकी जगह पे पहुंच गई है and the last value उसके लिए उसी की जगह बाकी बची है. So it is done. And this is how bubble sort works. And the bubble sort procedure or the pseudocode is what? You need 2 nested for loops. Outer loop for number of passes, inner loop for comparisons. Based on comparison, if values are not as per our requirement, only then we are going to swap it. And that completes your bubble sort. Now if we talk about time complexity for this, okay, then outer loop runs for n, inner loop runs for n times. अगर ये optimize नहीं करते हो आप n-1 और n-i को, then at max it will run for n times. Outer loop n, inner loop n, मतलब nesting अगर है तो n into n square. That's correct, Om. So time complexity for bubble sort will be, in a worst case, it goes for n square, order of n square. Now in average case, if we go for bigger notation, then still it is order of n square. Now look, this is average case. I'm saying this is average case. This is not a moderate time complexity. Okay, so this is in terms of bigger notation, still it is upper bound.
It is not theta, it is not omega, remember. So average time complexity is still order of n square. Now in best case, bubble sort may run up to order of n. Now what is best case? अगर already आपका array sorted manner में है, and if it is already sorted, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लो फ्लैग, और इनर लूप जब चलाते हो तो आप देखो कि आपने एक भी स्वैप किया या नहीं. अगर इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप एक भी स्वैप नहीं करते हो, दैट इंडिकेट्स योर एरे इज सॉर्टेड. एंड इन दैट केस आपको आगे के पासिस करने की ज़रूरत नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप कंपैरिजन करते हो और एक भी स्वैप नहीं होता है, दैट इंडिकेट्स योर एरे इज सॉर्टेड. और अगर एरे सॉर्टेड है, देन यू नीड नॉट टू गो फॉर फर्दर पासिस. तो आप यहाँ पे एक और इफ लिख के ब्रेक कर सकते हो आपकी आउटर लूप. So that is modified bubble sort, and in that case, if your array is already sorted, तो आप inner loop को एक बार चलाओगे, so n times, and then you break your passes. So in a best case, you can have order of n time complexity for bubble sort. So that's how bubble sort works. Okay. So similarly, when you go through this entire slide, you will have selection sort, and with the same kind of animations, you will have the entire process. Step by step, you can understand this entire process. Okay. So what I suggest is you go through selection and insertion sort process based on this animations and try to understand the given pseudocode here in the procedure part. Right? So if we discuss selection sort, then there is no way you can identify whether there was any swap or not. And that's why your outer loop and inner loop in selection sort will work for n times. And that's the reason if you have two nested loops, it is always gonna be n square, order of n square. बट अगर बेस्ट केस में भी आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ वेदर योर एरे इज सॉर्टेड और नॉट, तो फिर आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू गो थ्रू एंटायर प्रोसेस, योर इवन बेस्ट केस विल हैव ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो सिलेक्शन सॉर्ट हैज़ कॉमन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस. एंड सो the insertion sort में आप क्या करते हो? Look, selection sort, how it works, every time you go and find the minimum value, select your minimum value. That's how you should remember. So minimum value को ढूंढ के उसकी जगह पे लेके आओ. That's how selection sort works. लेकिन insertion sort work कैसे करेगा? वो insert करता जाएगा. Now you can remember insertion sort method with the example of playing cards. ताश के पत्तों के साथ जब आप खेलते हो तो आप क्या करते हो? एक एक पत्ता आप उठाते हो and you keep those cards in your left hand in sorted manner. तो पहला पत्ता जैसे ही आएगा, it is already sorted. So if you start with 6, it is already sorted. उसको कुछ नहीं करना है. But when you have a second card, आप देखोगे कि वो सेकंड कार्ड फर्स्ट कार्ड के लेफ्ट में जाएगा या राइट में. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड इंसर्शन सॉर्ट. तो यहाँ पे हम प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे? वी स्टार्ट आवर प्रोसेस विद द सेकंड नंबर. सो 2. अब जब 2 आता है तो मैं 2 को कहीं करंट वैल्यू में याद रखूँगा, एंड देन आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस करंट वैल्यू विथ ऑल द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड. रिमेंबर, ऑल द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड. अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी है तो मैं उसको एक स्टेप राइट धक्का मार दूंगा, शिफ्ट दैट वैल्यू टू द राइट साइड. सो 6 इज ग्रेटर देन 2. कंपेयर करने के लिए और एक वेरिएबल ले लो j. 6 इज ग्रेटर देन 2, तो उसको राइट साइड शिफ्ट करो.
क्यों शिफ्ट करते हैं? क्योंकि हमें 2 के लिए जगह बनानी है. वी वॉन्ट टू क्रिएट अ स्पेस फॉर करंट वैल्यू. जैसे ही जगह बन जाती है हम वहाँ पे उसको डाल देंगे, 2 को हम उस जगह पे डाल देंगे. Let's see one more example. 1 is my current value and I'm going to compare this 1 with all the values on the left side. पहले 6 के साथ कंपेयर करो. 6 is greater than 1 तो उसको शिफ्ट करूंगा. And then j minus minus, क्योंकि j लेफ्ट साइड जाएगा. Then we compare 2 with 1. 2 is still greater, so 2 को भी शिफ्ट करो. 1 के लिए आपको जगह मिल गई, so you insert 1 there. So what you are doing here is you are running your loop of j in a backward direction. j माइनस माइनस करते जाओगे. कब तक करोगे? या तो आप अपना एरे खत्म कर लो तब तक, या तो फिर जब तक आपको बड़ी वैल्यू मिलती है तब तक. So based on that, what you can do is you can bring your current value first. So we need number of passes and we'll take that t of I in the current value. उसके बाद हम लेफ्ट साइड की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. सो I माइनस 1 से हम j को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंपेयर वैल्यू ऑफ j विद द करंट वैल्यू. कब तक कंपेयर करेंगे? सो ईदर योर j इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 जब तक आपका एरे खत्म नहीं होता, या तो फिर t of j इज ग्रेटर देन करंट. if these two conditions are true, what you'll do is you will shift your value to the right side. मतलब jth वैल्यू को j प्लस 1 में डाल दो एंड देन यू डू j माइनस माइनस. सो ये लूप चलता रहेगा जब तक बड़ी वैल्यू मिलती है. व्हेन यू स्टॉप, जब बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप ये लूप को स्टॉप करोगे. सो आपका j कहाँ पे है? आपका j ऐसी जगह पे है जहाँ पे करंट से छोटी वैल्यू है. सो नेक्स्ट प्लेस पे आपके पास जगह खाली है. j प्लस 1 पे यू कैन इंसर्ट योर करंट वैल्यू. So you insert your current value on j plus 1 place and then you continue for next pass. Okay, so that's how insertion sort works. So again here we have outer loop, inner loop. Outer loop is for passes, inner loop is for comparisons. So in a worst case it goes for n square. Even in average case it goes for n square. What if in best case? Best case में क्या होगा? Well, best case में outer loop तो n times चलेगी. अगर 6 वैल्यू है तो आप 5 पास तो करोगे ही करोगे. But if it is already sorted तो आपकी inner loop एक भी बार नहीं चलने वाली. Okay? Always t of j will be less than current value क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा. और इनर लूप अगर नहीं चलेगी तो आउटर लूप n बार चली, इनर लूप 0 बार, सो टोटल n इटरेशंस. सो वी कैन से इन अ बेस्ट केस इंसर्शन सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, बाकी n स्क्वायर. ओके, so very quickly we have gone through bubble sort, selection sort and insertion sort. And what I believe is this is easy to understand and you have already written programs on this. So any queries in these 3 sorting methods? Any kind of confusion or query? Great, thank you Ankur. Fine, so let's focus on merge sort because this is somewhat complex part and somewhat complex algorithm to understand. But merge sort is better than selection, insertion and bubble sort in worst case. Okay, so पहले ये समझते हैं चलो कि merge sort काम कैसे करता है. Let's try to understand it and then we will see how we can implement it. Look, merge sort is based on divide and conquer technique.
डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी। वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करो। जैसे ही आपके पास छोटा प्रॉब्लम आ जाता है यू कैन सॉल्व इट इजीली। उस छोटे प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा छोटे प्रॉब्लम है तो आपको वो सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देन यू मर्ज दोज सॉल्यूशंस to find the larger solution of your original problem. So let's see how that divide and conquer works on this merge sort. तो merge sort ये बोलता है कि पहले आपको जो भी बड़ा सा एरे दिया है आप उसके टुकड़े करो, डिवाइड इट। अब कहाँ से टुकड़े करेंगे? Now let's say we are always going to divide our array from the middle place. Okay, from middle place. अगर 8 वैल्यू है आपके पास तो 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो आप एग्जैक्टली हाफ हाफ पार्टीशन कर सकते हो। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास देन फाइन, जो मिडिल वैल्यू है यू हैव टू डिसाइड आप उसको लेफ्ट साइड रखोगे या राइट साइड रखोगे, इट्स ओके। सो what we do is we have this entire array with 9 values. मिडिल वैल्यू आपकी हो जाती है 4 और अब आप डिसाइड करोगे कि 4 को लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। Now that's gonna be very easy actually because you are going to find the middle place. लोअर बाउंड अपर बाउंड आपके पास है और मिडिल प्लेस कैसे मिलेगा? लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। जो भी कैलकुलेशन आता है उसको अगर आप इंटीजर पार्ट में स्टोर करते हो, ठीक है, तो 4 आपके राइट साइड जाएगा। ओके, व्हाट हैपेंस इज 4 गोज ऑन द राइट पार्टीशन। तो हमने क्या किया? वी हैव डिवाइडेड दिस एरे टू लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। सो बड़ा सा प्रॉब्लम जो था वो अब छोटे छोटे 2 प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया। नाउ स्टिल वी आर गोइंग टू डिवाइड दोज 2 पार्टीशंस। हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक डिवीजन पॉसिबल है। सो इफ यू फोकस ऑन दिस पार्ट 7291, उसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो। लेट्स डिवाइड इट। देन अगेन फोकस ऑन दिस पार्ट 7 and 2, आप अभी भी उसको डिवाइड कर सकते हो। लेट्स डिवाइड दैट 7 and 2. So what we are doing, every partition which we have we are going to divide it from the middle place. 7291 उसको डिवाइड कर दिया 2 में, 2 पार्टीशन में। नाउ 43865 इसको फर्दर हमने 2 पार्टीशन में डिवाइड किया। 7 और 2 को डिवाइड करो, 7 ऑन द लेफ्ट 2 ऑन द राइट। 91 को भी आप डिवाइड करोगे, 9 ऑन द लेफ्ट 1 ऑन द राइट। 43 को भी आप डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, उसको फर्दर डिवाइड करो, 8 ऑन द लेफ्ट 65 ऑन द राइट। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड ऑल दोज पार्टीशंस। कब तक डिवाइड करोगे? जब तक डिवीजन पॉसिबल है। वेल 7 इज द सिंगल वैल्यू, आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे अब। सो 7 a single value cannot be further divided. And likewise 2, 9, 1, 4, 3, 8 all these are single values and those values cannot be further divided. But हाँ, यहाँ पे अभी भी 6, 5 2 वैल्यू है, division is possible. Let's divide it. So merge sort क्या बोलता है? It says you divide your array, you repeatedly divide your array into partitions. कहाँ से पार्टीशन करोगे? मिडिल से। और वो डिवीजन प्रोसेस आप करते जाओगे जब तक डिवीजन पॉसिबल है। नाउ व्हेन यू हैव अ सिंगल वैल्यू यू से इट इज ऑलरेडी द सॉल्यूशन। इट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉर्ट करना है तो एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू इज ऑलवेज सॉर्टेड। सो व्हाट वी से
is all these small problems, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है with a single value are already sorted. तो अब हमारे पास काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं and we want to merge those solutions now. हमें वो सारे सॉल्यूशन जो हैं उसको मर्ज करते जाना है. पहले हम डिवाइड करते गए और अब हम क्या करेंगे, विल गो विद द रिवर्स पाथ. डिवीजन प्रोसेस में जो पाथ फॉलो किया था उसी को रिवर्स फॉलो करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मर्ज दोज पार्टीशंस. सो अगर 7 2 डिवाइड हुआ था तो 7 और 2 को हम मर्ज करेंगे नेक्स्ट. बट व्हेन वी आर मर्जिंग दोज पार्टीशंस we will compare those values and we will consider the smallest value first. जब हम दो पार्टीशन को मर्ज करते हैं तो जो छोटी वैल्यू है उसको हम पहले कंसिडर करेंगे. So when we merge 7 and 2, we are going to consider 2 first and then 7. Same way 9 and 1 को अगर आप मर्ज करते हो तो आप पहले 1 को कंसिडर करोगे and then you will consider 9. If you are merging 4 and 3, then you will consider 3 and then you will consider 4. So आप compare करते जाओ और जो छोटी वैल्यू है उसको पहले कंसिडर करो. Now here 6 and 5 was divided, तो पहले 6 और 5 merge होंगे. We'll take 5 and then we'll take 6. अब 5 6 sort हो चुका है, okay? And it is going to be merged with what? With 8. So we compare 8 and we compare the first value of this partition 5. So 8 और 5 में से पहले हम 5 को लेंगे. अगर 5 कंसिडर हो गया तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 6. We compare 8 and 6. We'll take 6. अब 5 6 दोनों ले लिया, ये पार्टीशन खत्म हो गया, तो दूसरे के पास जो भी वैल्यू है वो लेके आओ 8. So this explains the merge process. Let us try to understand one more time. 2 7 sorted array है, 1 9 ये भी sorted array है. मतलब these two are solutions और हम इन दोनों को merge करना चाहते हैं. We want to merge these two partitions. Okay? So we compare first value of partition 1 with the first value of partition 2. मतलब 2 और 1 को कंपेयर करेंगे, जो भी वैल्यू छोटी है उसको कंसीडर करो. 1 को ले लिया, अगर 1 को ले लिया तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 9. 2 और 9 को कंपेयर करो, आप उठाओगे 2 को. अगर 2 ले लिया तो नेक्स्ट इज 7. 7 और 9 को कंपेयर करो, यू विल टेक 7 एंड देन यू विल टेक 9. सो इट इज समथिंग लाइक, मान लो कि मेरे पास लेट्स से एक पूरे क्लास में मैंने एक फॉर्म सर्कुलेट किया, हर एक स्टूडेंट को मैंने एक एक फॉर्म दे दिया, यू फिल दैट फॉर्म एंड सबमिट इट टू मी. तो मान लो कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हैं और मैंने हर एक को एक एक पेज दे दिया, यू फिल दैट फॉर्म एंड गिव इट बैक टू मी. तो मेरे पास 60 फॉर्म्स आ जाएंगे इन अ रैंडम सीक्वेंस, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं बैठे हैं. तो 60 फॉर्म्स का एक बंच मेरे पास आ गया. नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू शॉर्ट ऑल दोज 60 फॉर्म्स बेस्ड ऑन अ नंबर. अब मैं क्या करूँगा? ओके, मैं ये करूँगा कि ठीक है भाई, क्लास में से 2 रिप्रेजेंटेटिव को उठा लूँगा. भाई 2 स्टूडेंट क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं वो मुझे हेल्प करें टू सॉर्ट इन दिस बंच ऑफ फॉर्म्स. तो 2 स्टूडेंट मुझे हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और मैं क्या करूँगा, वो 60 फॉर्म के 2 बंच बना दूंगा 30 के. 30 फॉर्म्स एक स्टूडेंट को दिए, 30 फॉर्म्स दूसरे स्टूडेंट को दिए और उनको बोलूँगा कि आप ये सॉर्ट करके लेके आओ, देन वी विल मर्ज इट. अब वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो थे 2 स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट निकले, जो मैंने किया वही उन्होंने किया. वो दोनों ने उनके 2 और फ्रेंड को बिठा दिया साथ में और उन्होंने 30 को फर्दर डिवाइड कर दिया 15 में, एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ यू आर डिवाइडिंग योर टास्क. तो वो डिवाइड होते होते होते
सॉर्ट होने गए, एंड देन व्हेन इट कम्स बैक, सॉर्टेड आंसर जब वापस आता है, तो मैं क्या करता हूँ, वो दोनों स्टूडेंट को पूछूंगा, भाई आपका सबसे पहला फॉर्म जो है उसका नंबर बोलो, जिसका नंबर छोटा होगा उसको मैं पहले लूंगा। सो कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, मैं एक एक फॉर्म लेता जाऊंगा, एंड आई विल मर्ज दोज पार्टीशंस, एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर प्रोसेस गोज. So if you merge 3 4, your partition 1, and 5 6 8, your partition 2, तो आप 3 और 5 को कंपेयर करोगे, एंड यू विल कंसीडर 3 फर्स्ट. अगर 3 कंसीडर कर लिया तो नेक्स्ट वैल्यू 4. 4 और 5 को कंपेयर करोगे, एंड यू विल से आई विल टेक 4. अब एक पार्टीशन खत्म हो गया, मतलब एक स्टूडेंट के पास जितने भी फॉर्म थे वो सारे के सारे मेरे पास आ चुके हैं, उसका काम खत्म. तो फिर दूसरे स्टूडेंट के पास जितने भी फॉर्म थे वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे, और मुझे उसको किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो सेकंड स्टूडेंट के पास जितने भी फॉर्म है वो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ डायरेक्ट. सो इफ योर पार्टीशन 1 इज ओवर, ओके, इफ योर पार्टीशन 1 इज ओवर, तो सेकंड पार्टीशन में जो कुछ भी है आंख बंद करके सब कुछ लेके आओ. 5 6 8, आंख बंद करके लेके आओ सब कुछ. So if you are done with one partition, you can bring all the values from second partitions directly in the answer. Let's go through the same process one more time. The last merge process, 1 and 3, we consider 1. Next value is 2. So 2 and 3 we'll consider 2. 7 and 3 we consider 3. So next value ho gaya 4. So 7 and 4 we consider 4. Next value is 5. So 7 and 5, 5 को लेंगे. Next is 6. 7 and 6 हम 6 को लेंगे. Next is 8. So 7 and 8 we consider 7. तो next value हो गया 9. 9 and 8 we consider 8. अब ये second partition खत्म हो गया, तो फर्स्ट पार्टीशन के पास जो भी है वो आंख बंद करके लेके आओ 9. So this is the entire process of division and merge. And finally you have the sorted array. Okay? Finally you have the sorted array. So what was the process? Now this was the entire process we have gone for. फिजिकली हमने ये कुछ पार्टीशन करके रिप्रेजेंट किया कि ये मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है. लेकिन अब आप सोचो, ये ओरिजिनल एरे तो ठीक है, यूज़र आपको देगा तो उतनी मेमोरी तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन फर्दर जितने भी डिविजन्स आप क्रिएट करते हो, अगर आप हर एक डिवीजन, मतलब हर एक को फिजिकल डिवीजन कंसिडर करोगे तो उतनी ज़्यादा मेमोरी भी आपको चाहिए होगी. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आप फिजिकल पार्टीशन करने जाते हो तो आपको उतनी मेमोरी चाहिए होगी. अगर आपके पास ओरिजिनल एरे 10 एलिमेंट का है और उसके 5 के 2 पार्टीशन अगर फिजिकली आप करते हो तो 2 more arrays you will require, और उसकी साइज होगी 5. Now that division process goes on and on. तो जितने फिजिकल पार्टीशंस करोगे उतने एरे आपको चाहिए, और उतने एरे के लिए मेमोरी आपको चाहिए. सो इफ यू गो फॉर फिजिकल पार्टीशनिंग प्रोसेस देन इट इज नॉट फीजिबल. इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं लूँगा मैं. एंड इवन दैट इज नॉट प्री डिफाइंड. अगर आपका इनपुट चेंज होता है तो नंबर ऑफ पार्टीशंस भी चेंज हो जाएंगे. करेक्ट? अगर मैं 6 वैल्यू देता हूं तो नंबर ऑफ पार्टीशंस जितने होंगे वो बदल जाएंगे अगर मैं ओरिजिनली 10 एलिमेंट देता हूं. सो दिस partitioning process depends on the size of your input.
अगर इनपुट बड़ा है तो पार्टीशन बढ़ेंगे, इनपुट छोटा है तो पार्टीशंस कम होंगे. So even number of partitions are not predefined. अगर predefined नहीं है तो memory कैसे allocate करोगे आप? That is also one more problem. Yeah, Rohit, you can use pointer. You can use pointer. मतलब आप run time memory allocate करने जाओगे using malloc or calloc. So you have to go for runtime memory allocation, but still there is a problem. रन टाइम मेमोरी अलोकेट तो हो सकती है, लेकिन आप उतनी ज़्यादा मेमोरी अलोकेट करोगे? ओरिजिनल एरे जो है 9 एलिमेंट का है, तो लेवल 1 पे आप 2 एरे, लेवल 2 पे आप 4 एरे, लेवल 3 पे आप और नंबर ऑफ एरे 8 एरे जनरेट करोगे. एंड दैट इज tedious task as well as memory consumption will be increased, right? So that's not feasible. Physical partition करना feasible नहीं है. तो मर्ज सोर्ट ये बोलता है कि let's go for virtual partitions. फिजिकल पार्टीशन नहीं करता हूं मैं, ये बोलता हूं कि ठीक है, पार्टीशन कहां से होगा मुझे सिर्फ ये याद रखना है. Okay, what we do is we are only going to remember कि हमने पार्टीशन कहाँ से किया. आपके पास लोअर बाउंड है, आपके पास अपर बाउंड है. अगर आप मिडिल वैल्यू को याद रख लो तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, लोअर बाउंड से मिडिल तक का एक पार्टीशन और मिडिल से लेके अपर तक दूसरा पार्टीशन. आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, आप फिजिकली नया एरे डिक्लेयर नहीं करोगे. So in that case, what you have to do is you have to just remember middle value. कहाँ से partition हुआ? एरे जैसे है वैसे ही है. आप सिर्फ मिडिल वैल्यू को याद रखोगे और बोलोगे कि लोअर से मिडिल तक एक पार्टीशन, मिडिल से अपर तक दूसरा पार्टीशन. So here you need to remember the middle value, right? So how we can do that thing? So let us work on that part now. Let's say we have an array of 9 elements. तो index हो जाएगी 0 to 8. Now 0 is the lower bound, 8 is the upper bound. तो मुझे middle आसानी से मिल सकता है lower plus upper divide by 2. Okay, which is 4. So 0 से लेके 4 तक एक पार्टीशन और 4 से लेके 8 तक दूसरा पार्टीशन मैं इस तरह से याद रख सकता हूं. अब 4 जो है वो दोनों में से कोई एक ही पार्टीशन में जाएगा. अगर 4 को मैं राइट साइड रखता हूं तो 0 से 3 तक पहला पार्टीशन और 4 से लेके 8 तक दूसरा पार्टीशन. आप इस तरह से याद रख सकते हो. सो दिस इज योर वर्चुअल पार्टीशन. आप ओरिजिनल एरे को डिवाइड नहीं करते हो, आप वर्चुअली ये याद रखोगे कि 0 to 3 इज योर फर्स्ट पार्टीशन and 4 to 8 is your second partition. अब 3 या 4 आपको मिलेगा कैसे? You go for lower bound plus upper bound divide by 2, जो आपको वो मिडिल प्लेस दे देगा. So 0 to 3 is one partition. तो आपका लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 3. क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 3. And you can have a middle partition part. तो आप बोलोगे 0 to 1 is first partition, 2 to 3 is second partition. कुछ आप इस तरह से वो मिडिल वैल्यू को याद रख सकते हो. सो पहली बार जब मिडिल वैल्यू कैलकुलेट की आपको मिला 4. दूसरी बार जब मिडिल वैल्यू कैलकुलेट की आपको मिला 2. अब यहाँ पे अगर आप मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करते हो आपको मिलेगा 1 एंड सो ऑन. तो जितनी बार पार्टीशन करोगे उतनी मिडिल वैल्यूज आपको मिलती जाएगी. तो फिर से एक प्रॉब्लम आ गया, अरे कितनी मिडिल वैल्यू याद रखूं मैं? जितनी मिडिल वैल्यू याद रखनी है उतने वेरिएबल डिक्लेयर करने जाऊंगा. सो दैट इज वन मोर टाइम अ टीडियस टास्क, राइट? दैट्स वंस अगेन दैट्स अ टीडियस टास्क. तो फिर भाई ये भी एक और प्रॉब्लम है कि भाई नंबर ऑफ मिडिल वैल्यूज कितनी याद रखनी है.
अगर इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो अच्छा है. And for that purpose, what we do is we go for recursion. हर बार जो मिडिल वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करता हूं. सो आई विल गो फॉर रिकर्जन. तो पुरानी मिडिल वैल्यू जो है वो फंक्शन कॉल होने की वजह से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगी. So operating system is going to remember that middle value. Why? Because we go for recursion. So how do we partition those things? Correct? So let us understand how we are going to partition, how we are going to calculate middle value, और वो सारी की सारी middle value याद कहाँ पे रहेंगी. वो याद रखने के लिए हम करेंगे recursion. So let's say you call m sort function merge sort के लिए. मान लो कि आपने एक m sort function बनाया जहां पे आपका original array है. ARR is your original array. Now forget about this temporary array, we will discuss it later. So you have original array, you have lower bound which is start, and you have upper bound which is end. So start से लेके end तक जो range है आपकी वो है आपके पास. So what you are going to do is, first of all, you are going to calculate the middle point. Start plus end divide by 2. आपको मिल जाएगा mid. जैसे ही आपको mid मिलता है आप दो पार्टीशन डिसाइड कर सकते हो, स्टार्ट से लेके मिड और मिड से लेके एंड. सो व्हाट वी डू इज वी हैव वन पार्टीशन इन एरे फ्रॉम स्टार्ट अप टू मिड, एंड वी हैव अनदर पार्टीशन इन एरे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड प्लस 1 अप टू एंड. सो स्टार्ट से मिड और मिड प्लस 1 से एंड, ये दो पार्टीशन आपको मिले. अब ये दोनों पार्टीशन को आप फर्दर डिवाइड करने जाओगे. वी वॉन्ट टू रिपीट दिस प्रोसेस, तो हमने कर दिया दोनों के ऊपर रिकर्जन. एम सॉर्ट सेम फंक्शन वापस कॉल किया. अब इफ यू कॉल अ फंक्शन तो जितने पैरामीटर हैं वो पैरामीटर पास होने चाहिए. अगर टेम्पररी एरे वहाँ पे था तो यहाँ पे भी रहेगा. कीप इट. देखेंगे टेम्पररी क्यों चाहिए वो हम बाद में देखेंगे. इट विल बी नीडेड एट द टाइम ऑफ मर्जिंग प्रोसेस. सो आप क्या करते हो, आपका जो भी एरे है उसको मिडिल से आप डिवाइड करते हो और स्टार्ट से मिड, मिड प्लस 1 से एंड, दोनों पार्टीशन को फर्दर डिवाइड करने जाओगे. जब आपका लेफ्ट पार्टीशन डिवाइड नहीं होता है तो आप राइट में जाते हो. जब आपका राइट भी फर्दर डिवाइड नहीं होता है तो आप आगे बढ़ोगे. आगे बढ़ना मतलब क्या, लेफ्ट फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, राइट भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. तो जब आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो तो आप उनको मर्ज करोगे. सो आफ्टर दिस रिकर्सिव पार्ट वी नीड टू मर्ज दोज पार्टीशंस. लेकिन ये फर्दर डिवीजन प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आप उसको डिवाइड कर सकते हो. स्टार्ट से लेके एंड जो भी रेंज है, अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करो, अगर डिवाइड नहीं कर सकते हो तो वापस चले जाओ. सो हाउ विल यू डिसाइड वेदर यू कैन डिवाइड इट और नॉट. अगर सिंगल वैल्यू है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा. कैसे पता चलेगा कि एक ही वैल्यू है. इफ योर स्टार्ट एंड एंड बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम प्लेस. इफ योर स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड तो एक वैल्यू है. सो इफ योर स्टार्ट इज लेस देन एंड तो एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है. So that will be our condition, recursive condition. If your start is less than end, you are in a position to further divide that thing. Divide करो and recursion में जाओ. Now when there is no further recursion possible, you will come back and you will merge those partitions. So original array के अंदर जो भी data है उसको आप merge करोगे start से लेके mid एंड मिड प्लस 1 से लेके एंड. अब यहाँ पे मैं वो 4 की जगह 3 वैल्यू सेंड करूँ तो भी चलेगा. एंड एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू पास दिस टेम्पररी एरे, क्योंकि मर्ज करते वक्त मुझे टेम्पररी एरे की ज़रूरत है. ओके.
नाउ व्हाई वी नीड इट हम देखेंगे जब मर्ज करेंगे. सो अब एज ऑफ नाउ आप क्या करते हो कि भाई हाँ, जब आप मर्ज करने जाते हो तो ओरिजिनल एरे पास करोगे, टेम्पररी एरे पास करोगे, एंड देन यू विल सेंड दोज रेंज स्टार्ट, मिड और एंड. ये 3 वैल्यू आप सेंड करोगे सो दैट आपको ये पता चले कि आप मर्ज किसको करना चाहते हैं. सो मर्ज इज other function, one more function that still we are going to decide it. तो ये हो गया पार्टीशन का प्रोसेस. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये टेम्पररी यूज़र थोड़ी देगा. करेक्ट, यूज़र थोड़ी आपको टेम्पररी देगा, एंड इवन यूज़र थोड़ी आपको ये स्टार्ट और एंड देगा. सो यूज़र क्या करेगा? वेल, यूज़र इज सिंपली गोइंग टू कॉल अ फंक्शन मर्ज सॉर्ट. उसके पास ओरिजिनल एरे है और उसके पास उसकी साइज है. योर एंड यूज़र has the original array and he knows what is the size of the array. तो यूजर ने तो merge sort कॉल किया और उसने array दिया with size. What you want, आपको क्या चाहिए? आपको array चाहिए, ठीक है, array है. आपको एक temporary array चाहिए जो यूजर ने नहीं दिया. So आप क्या करोगे? आप पहले एक temporary array बनाओगे with the same size of the original one. Okay? आप एक temporary array को डिक्लेयर करोगे विद द सेम साइज ऑफ ओरिजिनल वन. सो अब आपके पास टेम्पररी एरे आ गया, तो आप ये एम सॉर्ट कॉल कर सकते हो. एम सॉर्ट, पहला पैरामीटर ओरिजिनल एरे, दूसरा पैरामीटर टेम्पररी. स्टार्टिंग प्लेस इंडेक्स हर बार 0 रहती है और एंडिंग प्लेस साइज -1 विल बी द इंडेक्स. सो दिस इज हाउ वी कॉल एम सॉर्ट. एम सॉर्ट क्या करेगा? पार्टीशन. पार्टीशन ख़त्म होने के बाद मर्ज, और मर्ज हो जाने के बाद आप वापस आओगे. नाउ व्हेन यू कम बैक फ्रॉम मर्जिंग प्रोसेस, आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल चुका है. यू आर डन विथ योर एंटायर टास्क. अगर आपने काम ख़त्म कर लिया तो जो टेम्पररी एरे लिया था उसको फ्री कर दो फिर से. ठीक है, आपका काम ख़त्म, अब टेम्पररी की ज़रूरत नहीं है. सो यू डिलीट दैट टेम्पररी एरे and you are done with your process. So this is how division process goes on in merge sort. merge sort में कुछ इस तरह से division process चलता है, जहाँ पे आप हर बार सिर्फ मिडल कैलकुलेट करते हो, और उस मिडल को याद कौन रखता है? बिकॉज ऑफ रिकर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखेगा. So any question in this part? अब तक कोई query या confusion? Okay. Fine. Neil is asking, sir, how questions can be asked in the sorting exam, sorting in an exam. Look, अगर कम marks में पूछना है 2 marks or something, then I may go for bubble sort, insertion sort, and selection sort algorithm. I can directly ask, write an algorithm for given sorting technique. तो आपको pseudocode algorithm कुछ भी लिखना होगा. अगर merge sort या फिर quick sort का algorithm या pseudocode पूछता हूँ तो वो ज़्यादा marks में पूछ सकते हैं. Okay, 4 to 6 marks. So that's one kind of a question where you have to write algorithms. Now another kind of question can be asked like you will be given an array. आपको एक array दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि apply a given sorting technique on the given array and give entire trace. Okay, let's say कि आपको 5 नंबर वाला एक array दे दिया और बोल दिया कि इस पे bubble sort apply करो और उसका ट्रेस दिखाओ. सो ऑन एवरी स्टेप आप क्या कंपेयर करते हो और कंपैरिजन के बाद वो वैल्यू स्वैप हुई या नहीं हुई, उसके लिए आपको नया एरे लिख के दिखाना पड़ेगा. नाउ यू वांट टू ट्रेस इट, सो यू विल राइट योर एरे इन द नेक्स्ट लाइन. दैट डजंट मीन आपने नया एरे बनाया, एरे तो वही है लेकिन आप उसका स्टेटस दिखाते हो. एवरी टाइम यू आर गोइंग टू राइट द स्टेटस, करंट स्टेटस ऑफ योर एरे, एंड दैट्स हाउ यू राइट ऑल द स्टेप्स. एक एक करके हर एक स्टेप को दिखाओ.
So that's another kind of question. एरे दे दिया और algorithm बोल दिया apply it. Now then there may be questions for 1 mark like what is the time complexity for bubble sort, what is the best case time complexity for insertion sort. So you just have to remember those time complexities. आप सिर्फ वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखोगे, कैसे आता है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन अपकमिंग सेमेस्टर, yes, in upcoming semester you are going to have entire subject design and analysis of algorithm, and in that part you are going to learn how to calculate time complexity. Okay, Om is asking, can we write code instead of algorithm in exam? देखो, अगर algorithm मांगा है तो आपको algorithm ही देना है. algorithm की जगह पे आप इस तरह से कुछ pseudo code लिख सकते हो. Now whatever you see on your screen is kind of a pseudo code. You need not to write exact C language code. ठीक है, आपको सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज का कोड नहीं लिखना है अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है अल्गोरिदम पे. हाँ, अल्गोरिदम की जगह पे आप कुछ इस तरह से सूडो कोड लिख सकते हो, इट्स ओके. अब बोलोगे कि सर सूडो कोड और एक्चुअल कोड में फ़र्क क्या है? वेल देयर आर मल्टीपल चेंजेस. अगर एग्जैक्ट सी कोड लिखते हो तो आपको फंक्शन डिक्लेयर करने होंगे, सूडो कोड में वो ज़रूरी नहीं. ठीक है, अगर एग्जैक्ट प्रोग्राम लिखते हो तो हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, जो सूडो कोड में ज़रूरी नहीं. फंक्शन कॉल भी एग्जैक्ट हो ज़रूरी नहीं. सो हियर व्हाट वी डू इज़ वी डू नॉट डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स फर्स्ट एंड देन वी यूज़. हम सिर्फ डायरेक्ट यूज़ करते जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी से दिस इज़ काइंड ऑफ अ सूडो कोड हियर. इवन इन सूडो कोड आप लास्ट में सेमीकोलन नहीं करते हो तो भी चलेगा, राइट? सो दोज आर फ्यू बेसिक डिफरेंसेस. Well, so I hope everyone is clear with this part. Now let us see how we merge. So क्या किया आपने, 7 and 2 डिवाइड करते हुए आप 7 को एक पार्टीशन, 2 को दूसरे पार्टीशन तक पहुंच गए हो आप. Now 7 cannot be further divided left side. Okay, right side 2 is also a single number, so it cannot be further divided. सो 7 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 भी डिवाइड नहीं हो सकता, लेफ्ट डिवाइड नहीं हो सकता, राइट डिवाइड नहीं हो सकता. तो अब हम उन दोनों को मर्ज करेंगे. सो लेट अस गो एंड हैव अ लुक एट मर्जिंग प्रोसेस. नाउ जब आप मर्ज करते हो पार्टीशन को, तब आपको एक एक्स्ट्रा टेम्पररी एरे चाहिए. एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू गो फॉर मर्जिंग प्रोसेस यू विल रिक्वायर टेम्पररी एरे. सो मान लो कि आपके पास एक और टेम्पररी एरे है यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू मर्ज 7 and 2. सो कैसे मर्ज करेंगे? वेल, अगर वो दो पार्टीशन है तो दोनों पार्टीशन के लिए कुछ पॉइंटर चाहिए हमको. नाउ दिस पॉइंटर इज नथिंग बट इंडेक्स वेरिएबल. सो पहला पार्टीशन APTR, ठीक है. दूसरा पार्टीशन लेट्स गो फॉर BPTR, एंड जो टेम्पररी एरे है उसके लिए इंडेक्स IDX. अगर इस तरह से हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, देन व्हाट वी आर गोना डू इज APTR जहाँ पे है उस वैल्यू को BPTR जहाँ पे है उस वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करूँगा. सो आई एम गोइंग टू कंपेयर 7 and 2, एंड वॉट एवर वैल्यू इज स्मॉलर, जो भी वैल्यू छोटी है उसको हम टेम्पररी में लेके आएंगे. सो इफ 7 and 2, 2 इज स्मॉलर वन, सो 2 को मैं टेम्पररी में लेके आऊँगा. उस छोटी वैल्यू को हम टेम्पररी में असाइन करेंगे. अब अगर BPTR वाली वैल्यू को आप कंसिडर करते हो, देन डू BPTR प्लस प्लस, BPTR को आगे लेके जाओ. अलॉन्ग विद दैट IDX प्लस प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक वैल्यू स्टोर की है तो दूसरी वैल्यू नेक्स्ट प्लेस पे. सो वी कंपेयर वैल्यूज एंड वी कंसिडर द स्मॉलेस्ट वन. अब एक पार्टीशन अगर आपका ख़त्म ही हो गया है तो दूसरे पार्टीशन के पास जो कुछ भी है वो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आओ. ओके, नाउ योर बोथ पार्टीशंस आर ओवर. पहला पार्टीशन भी ख़त्म, दूसरा पार्टीशन भी ख़त्म. अब ये तो वर्चुअल पार्टीशन था ना,
एक्चुअल फिजिकल पार्टीशन तो है ही नहीं, इट इज़ 0 1 कंटिन्यू। तो आपको जो आंसर मिला वो कहाँ पे है आपके पास? टेम्पररी में। अब टेम्पररी में जो आपको आंसर मिला है, गेट दैट आंसर बैक टू द ओरिजिनल एरे। सो ये दोनों वैल्यू को आप सेम सीक्वेंस में वापस ओरिजिनल एरे के अंदर रख दोगे, 2 and 7, उसको वापस लेके आओ ओरिजिनल एरे में। दैट्स हाउ मर्ज प्रोसेस वर्क्स। सो आपने ये लेफ्ट वाला पार्टीशन का काम खत्म कर लिया। अब जाओगे आप राइट साइड। राइट साइड को पार्टीशन करना ही बाकी है, सो पहले उसके पार्टीशन करो यहाँ से। अब लेफ्ट साइड 9 कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, राइट साइड 1 कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो अब 9 और 1 को हम मर्ज करेंगे। सो ए पी टी आर स्टार्ट होगा 2 इंडेक्स से, बी पी टी आर स्टार्ट होगा 3 इंडेक्स से, आई डी एक्स भी स्टार्ट होगा 2 इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? आई डी एक्स और ए पी टी आर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, is your starting point. BPTR is actually your mid plus 1 और चलेगा कब तक? End तक. So now we compare 9 and 1. We'll take 1 BPTR plus plus IDX plus plus. BPTR खत्म तो APTR के पास जो भी वैल्यू है लेके आओ, APTR प्लस प्लस IDX प्लस प्लस। दोनों पार्टीशन खत्म तो एक्चुअली फिजिकल पार्टीशन तो है नहीं। जो आंसर मिला टेम्पररी में उसको वापस लेके जाओ ओरिजिनल में। सो ये जो पार्टीशन था यहाँ पे, उसका लेफ्ट काम खत्म, राइट काम भी खत्म। अब ये दोनों को हम मर्ज करेंगे। सो वी स्टार्ट विथ व्हाट? वी स्टार्ट विथ APTR ऑन फर्स्ट पार्टीशन, BPTR ऑन सेकंड पार्टीशन, IDX इक्वल्स टू APTR। 2 and 1 will get 1, so BPTR plus plus. 2 and 9 will take 2, APTR plus plus. 7 and 9 will take 7, APTR plus plus. एक पार्टीशन खत्म, दूसरे के पास जो भी है वो लेके आओ, BPTR प्लस प्लस। दोनों पार्टीशन खत्म तो जो भी सॉल्यूशन आपको टेम्पररी में मिला है वापस ओरिजिनल में लेके जाओ। So that's how we do the merge process. That's how we do merge process. So let us see how we can merge. जब हमने merge फंक्शन को कॉल किया था, हमने ओरिजिनल एरे पास किया, हमने टेम्पररी एरे पास किया बिकॉज वी नीड इट, हमने पहले पार्टीशन का स्टार्ट पास किया विच इज स्टार्ट ए, हमने मिड प्लस 1 पास किया विच इज एक्चुअली सेकंड पार्टीशन का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट बी, एंड लास्ट थर्ड मतलब पैरामीटर था एंड, कहाँ पे एंड होगा हमने वो पास किया। नाउ दैट इज एक्चुअली द एंड ऑफ सेकंड पार्टीशन, एंड बी। तो अब यहीं से आपको ये पता चलता है कि बी सेकंड पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ। आपको यहीं से पता चलेगा कि फर्स्ट पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। पहला पार्टीशन स्टार्ट ए से स्टार्ट होगा और वो ख़त्म कहाँ पे होगा? स्टार्ट बी -1 पे। जहाँ पे दूसरा पार्टीशन स्टार्ट होता है उसके आगे आपका फर्स्ट पार्टीशन ख़त्म होता है। Okay, so this can give you start A, end A, start B, end B. So let us start merging those two partition. उसके लिए आपको क्या चाहिए? APTR, BPTR और IDX चाहिए। ठीक है, चलो APTR कहाँ पे जाएगा? पहले पार्टीशन के स्टार्टिंग में। BPTR कहाँ पे जाएगा? सेकंड पार्टीशन के स्टार्टिंग में। और IDX कहाँ जाएगा? जहाँ पे स्टार्ट ए है वहाँ पे। तो ये 3 पॉइंटर आपको मिल चुके हैं। देन व्हाट यू डू, यू कंपेयर वैल्यू ऑफ APTR एंड वैल्यू ऑफ BPTR। आप क्या करते हो? APTR की जो वैल्यू है उसको
BPTR की जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करोगे. Now whichever is smaller, you are going to assign that value in the temporary array. So if APTR is less than BPTR, तो आप APTR वाली वैल्यू को टेम्पररी के IDX में असाइन करोगे. Get array of APTR, save it in temporary of IDX. Once you get that value, APTR plus plus IDX plus plus, तो ये इंक्रीमेंट पार्ट जो है उसको आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो. मैंने यहां पे क्या किया, आई हैव रिटन पोस्ट इंक्रीमेंट हियर. इट इज पोस्ट फिक्स, पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, सो व्हाट आई हैव डन हियर इज APTR प्लस प्लस एंड IDX प्लस प्लस मैंने पोस्ट फिक्स से लिख दिया. सो इट इज इक्विवेलेंट. So if APTR is small, मैं APTR की वैल्यू लूंगा, else I am going to get value from BPTR. BPTR से वैल्यू लेके IDX में रखो and then do BPTR plus plus IDX plus plus. तो आप दो वैल्यू कंपेयर करते हो और छोटी वैल्यू को टेम्पररी में रखते हो. Now you are going to repeat this process. Okay, you are going to compare these two values and you are going to consider smallest value repeatedly. तो वो जाएगा while loop में. अब ये वाइल लूप चलेगा कब तक? तो आप ये कंपैरिजन वाला काम कब तक करते हो? जब तक दोनों पार्टीशन से एक एक वैल्यू आपको मिलती है. दोनों तरफ से एक एक वैल्यू मिलती है तभी आप कंपेयर कर सकते हो. दोनों में से एक पार्टीशन अगर खत्म हो गया देन यू कैन नॉट गो फर्दर. सो कब खत्म होगा, कैसे पता चलता है आपको कि पार्टीशन 1 कब खत्म होगा? सो APTR जब तक स्टार्ट B से छोटा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं. सिमिलरली BPTR जब तक एंड B से छोटा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीशन अभी भी काम कर रहे हैं. सो वाइल APTR इज लेस देन स्टार्ट B एंड BPTR इज लेस देन एंड B, तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे. नाउ योर एंड B इज इंक्लूसिव, तो वो इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे, और अगर इक्वल्स टू नहीं लिखता हूं तो मैं +1 कर दूंगा. ओके, सो दिस लूप, दिस while loop is going to make those comparisons repeatedly and it is going to consider the smallest value and store that value in temporary array. अब जैसे ही आपका एक पार्टीशन खत्म हो जाएगा ना, ये while loop भी रुक जाएगी. दोनों में से एक पार्टीशन अगर खत्म हो गया तो ये while रुक जाएगी. इट विल स्टॉप. एक पार्टीशन खत्म होने के बाद हमें क्या करना है? वेल, दूसरे पार्टीशन के पास जो कुछ भी है आंख बंद करके सब कुछ लेके आओ. तो पता कैसे चलेगा कौन सा पार्टीशन खत्म हो गया? सो व्हाट विल डू इज, मान लो कि आपका सेकंड पार्टीशन खत्म हो गया, BPTR खत्म हो गया, तो आप क्या करते हो? APTR के पास जितनी भी वैल्यू है वो IDX में लेके आओगे. देन APTR प्लस प्लस IDX प्लस प्लस, जितनी भी वैल्यू है. ओके, व्हाइल लूप जब तक APTR स्टार्ट B से छोटा है तब तक उसके पास जितनी भी वैल्यू है वो लेके आओ. एंड सिमिलरली यू कैन से आप BPTR से एक एक वैल्यू IDX में डालोगे. कब तक? जब तक BPTR NB + 1 से छोटा है. राइट. सो ये कंपैरिजन खत्म होने के बाद हम जाएंगे APTR के पास, भाई तेरे पास और कोई वैल्यू बची है मुझे दे दे. अदरवाइज वी गो फॉर BPTR. भाई BPTR को बोलेंगे डू यू हैव एनी रिमेनिंग वैल्यूज, गिव इट टू मी. सो BPTR से वैल्यू उठा के डाल दी इंडेक्स में, टेम्पररी के अंदर. नाउ दिस पार्ट विल मर्ज दोज पार्टीशंस और फाइनल आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलता है? You have that solution in temporary array, right? You have that entire solution in temporary array. तो लास्ट में एक स्टेप आपका बाकी रहता है कि भी जो सॉल्यूशन आपको टेम्पररी में मिला है, कॉपी दैट एंटायर सॉल्यूशन बैक टू द ओरिजिनल एरे. आप क्या करते हो? टेम्पररी में आपको जो कुछ भी मिला है वो आप ओरिजिनल एरे में डालोगे. And that's not a single value, we have multiple values. So for loop,
पहले पार्टीशन के स्टार्टिंग से लेके दूसरे पार्टीशन के एंड तक आपको जो कुछ भी मिला है सब कुछ टेम्पररी से उठा के ओरिजिनल में डाल दो. ओके, so that gives you the entire merge process. APTR, BPTR, IDX, दो वैल्यू को कंपेयर किया, छोटी वैल्यू को कंसिडर किया. कंपैरिजन खत्म होने के बाद अगर पहले पार्टीशन के पास वैल्यू है तो लेके आओ, दूसरे पार्टीशन के पास वैल्यू है तो लेके आओ. सारी वैल्यू टेम्पररी में आ गई है, सो फाइनली टेम्पररी में से ओरिजिनल में वापस डालो. So that's the process. Let us focus on the right side. ये डिवाइड करना बाकी था तो पहले डिवाइड करेंगे. We go to left. डिवाइड करना बाकी है तो डिवाइड करेंगे. Go to left. 4 cannot be divided. Come back. Go to 3. 3 cannot be divided. Come back. 4 और 3 फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं तो उसको मर्ज करेंगे. Compare 4 and 3. We consider 3. BPTR प्लस प्लस. ख़त्म हो गया तो 4 को ऐसे ही लेके आओ. APTR प्लस प्लस. दोनों पार्टीशन ख़त्म हो गए हैं तो जो सॉल्यूशन एरे में टेम्पररी एरे में है वो वापस लेके जाओ ओरिजिनल में. सो दैट्स हाउ दिस मर्ज सॉर्ट वर्क्स. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स. वो डिवाइड करता जाएगा, मर्ज करता जाएगा. लास्ट टाइम जब आप मर्ज करोगे पार्टीशंस को तो सेम प्रोसेस. एंड फाइनली जो सॉल्यूशन है वो टेम्पररी के अंदर है, पूरा सॉल्यूशन वापस ओरिजिनल में डाल दो. ओके, सो फाइनली यू हैव द एंटायर sorted array and that's how merge sort works. अब बात आती है कि भाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा. वेल व्हाट यू डू इज यू गो फॉर रिकर्जन. मतलब मिडिल वैल्यू से अगर डिवाइड करते हो तो कुछ बाइनरी ट्री जैसा बनता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट. अगर n नंबर ऑफ नोड्स आपको बाइनरी ट्री में डालने हैं तो मे भी आपकी ट्री की हाइट log n बनती है. तो मतलब आप जब डिवाइड करते जाते हो, डिवाइड 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 डिवाइड, तो आप कितने डेप्थ लोगे. व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ योर ट्री? इट विल बी log n. जितनी बार डिवाइड किया उतना आप अंदर गए. log n इज द हाइट. अब हर एक लेवल पे ऑन इच डेप्थ वैल्यू, डेप्थनेस, हर एक जगह पे आप वैल्यूज को कंपेयर करते हो. n वैल्यू है तो n वैल्यूज कंपेयर होती हैं. n वैल्यू को कंपेयर करना हर एक लेवल पे log n आर द नंबर ऑफ लेवल्स. तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है n log n. डिटेल्ड प्रोसेस अपकमिंग सेमेस्टर्स में आप देखोगे y log n log n. बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. इट इज n log n. बेस्ट केस, worst case or average case, it is n log n. Well, so that was the merge sort. We have discussed today bubble sort, selection sort, insertion sort and merge sort. Okay, we'll stop here for today because one class is having another lecture now. So that's all from my side. Now quick sort is remaining. What we'll do is in a next lecture, next week Monday or Tuesday, जब भी आपका lecture है, I'm going to explain quick sort also. So that's all for now. Thank you everyone, and see you in the next week, next lecture, where we will discuss quick sort. Those who are having second lecture, you may leave and join the next lecture. Others are free to leave. Thank you.